नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र शाहगंज में ट्रैफिक जैम। बीएसपी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन। शहर के रंग मंदिर में देवर दासी मैया की जयंती मनाई गई। अजान विवाद के बीच बेंगलुरु पुलिस ने पूजा स्थलों से माइक जब्त करना शुरू किया। कुमारस्वामी ने बीजेपी के सत्ता में बने रहने पर श्रीलंका जैसी स्थिति की चेतावनी दी। परिवारवादी पार्टियों ने देश संग विश्वासघात किया, पीएम मोदी का तंज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिले में बड़ी और चौड़ी सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन बीदर शहर के पुराने क्षेत्र किले के भीतर प्रवेश करने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शहर के अंबेडकर चौक से शाहगंज कमान सड़क पर शाम के समय ट्रैफिक जैम रहता है। कमान के अंदर से जो सड़क गुजरती है, जो बहुत छोटी है, जहां से एक समय में एक ही 4 पहिया वाहन पास हो सकता है, इस प्रकार यह प्रतिदिन ट्रैफिक जैम लगा रहता है। यहाँ यातायात विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात विभाग को इस क्षेत्र में व्यवस्था कायम कर लोगों को सहूलियत उपलब्ध करानी चाहिए। केपी के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन करके ब्रिम्स अस्पताल में से निकाले गए डी ग्रुप कार्यकर्ताओं को वापस काम पर रखने की मांग की। इस अवसर पर स्वामीदास केम्पेनूर ने बात करते हुए मांग की कि ब्रिम्स के निर्देशक को बर्खास्त किया जाए। प्रदर्शन करने से पहले शहर के अंबेडकर चौक से रैली निकाली गई, जिसमें काम से निकाले गए कार्यकर्ता आदि ने भाग लिया। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बीदर ब्रिम्स ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಹೋರಾಟನ ರೂಪ ಮಾಡಿದ. ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 96 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ, ಆ ನೋವು ಇವತ್ತು ಸಹಿಸಲಾರ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 3 ಸರ್ತಿ ತಂದೀವಿ. ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ADC ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದರಿ ಈ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಪುನಃ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಟೆಂಡರ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಟೆಂಡರ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನದ, ಬೀದರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಮಂಡ್ಯನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು 2 ವಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವು ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಬೇಕು DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಬ್ಬು ನಾರ್ತಾ ಇದೆ. आज शहर के रंग मंदिर में देवर दासी मैया जयंती मनाकर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसका उद्घाटन बीदर के विधायक रहीम खान ने किया। कार्यक्रम में ईश्वर स्वामी ने व्याख्याता दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO जहीरा नसीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಂತೋಷ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹಲವಾರು ವಚನಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, 176 ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಂಚಾಳ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನ 3 ಸಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಪದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಷಟ್ಪದಿಗಳವರೆಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಇದೊಂದಾದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಸುತ್ತಿ ಹರಿಯುವ ಸಾಗರ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಜೀವ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಕಾಯ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಜೀವ ಕಾಯ ಉಳ್ಳಡೆ ನೆನೆಯದ ಕುಣ್ಣಿಗಳೇ ನಿಂಬೆ ರಾಮನಾಥ. ಚಿಕ್ಕ ವಚನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕರಿಯನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲಿ, ಸಿರಿಯನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲಿ, ಹಿರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವನ್ನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಸುಳ್ಳು ನುಡಿ ಒಂದರೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ. ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವಚನ ಅಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಬಸವಳ ನೆನಪು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನೋ, ಇವತ್ತು ವಚನ ಅಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಾಸಿಮೈ ಅಂತ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. वेपन है हमारे पास एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री खोले हम, ना हमको लोन देता है। लोन की गवर्नमेंट भी होते, बैंक भी किसको देती है? जो लोग डुबोने वाले होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग देते हैं, उनको देते हैं। नहीं तो 10,000 के लिए
1 लाख के लिए हमारे चप्पल फट जाते लेकिन लोन नहीं मिलता, पूरा सिस्टम बिगड़ गया। तो एक ही वेपन है कि तुम्हारे बच्चे अगर अच्छा पढ़ गए, हार्ड वर्क करके इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े तहसीलदार, एसी, डीसी बन गए तो बड़े से बड़ा आदमी आपके नीचे आ जाता है। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए, जो मजदूर मेहनत करता है, किसी का घर बनाता है, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाता है, मगर जब वो अपने घर को आता है तो उसके घर में बारिश पानी टपकता है, उसके घर में 1% भी नहीं रहता, लेकिन वो बड़े से बड़ा घर बनाता है। इसी तरह कारपेंटर इतना अच्छा बड़े से बड़े घर में डोर होंगे, विंडोज होंगे, पूरा बनाता है, मगर उसके घर में कुछ नहीं। ये दुनिया का दस्तूर देखिए। ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿಂದು ಇಲ್ಲಿಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಆಸೆ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನನ್ನ ಸೈಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೇಕಾರರು ಸುಮಾರು ಜನರು ವಚನಕಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅದು ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ವೆಫ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ವೆಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹಾಕುವಾಗ ಏನಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾರಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಜೀವನದ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಅದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನಾಗ್ಲಿ ತಾವಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಾರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ದಾರವನ್ನ ಏನಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ವೀವಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। कई हिंदू समूहों ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान देने के खिलाफ अभियान शुरू करने के साथ बेंगलुरु शहर की पुलिस ने पूजा स्थलों से माइक्रोफोन जब्त करना शुरू कर दिया है, जो कथित तौर पर ध्वनि प्रदूषण पर अदालत के आदेशों की अवहेलना करते थे। शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि धार्मिक स्थलों से कई माइक्रोफोन जब्त किए गए जहां अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं और निर्धारित डेसिबल स्तर की निगरानी के लिए अभियान जारी रहेगा और कार्रवाई शुरू की जाएगी। जनता दल एस के नेता HD कुमारस्वामी ने कहा कि अगर भाजपा अगले 5 से 10 साल तक सत्ता में बनी रही तो भारत को श्रीलंका जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के लिए सरकार बनाने का मौका मांगते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो JDS एक दलित को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए तैयार है। अगर अगले 5 से 10 साल तक हालात ऐसे ही चलते रहे, अगर बीजेपी की यही सरकार चलती रही और प्रशासन इसी तरह चलता रहा तो देश को आज जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। कुमारस्वामी ने कहा। यहाँ किसानों के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर हमारे लोगों को उन चीजों की जानकारी नहीं है जो हो रही है तो हमें एक ऐसी परेशानी की स्थिति में धकेल दिया जाएगा जिसका सामना श्रीलंका के लोग कर रहे हैं। श्रीलंका वर्तमान में इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइन, कम आपूर्ति में जरूरी सामान और घंटों बिजली कटौती से वहां की जनता महीनों से परेशान है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस साल 1 जनवरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2.75% की वृद्धि को मंजूरी दे दी। राज्य के वित्त विभाग ने कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस फैसले से 1447 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक खर्च आएगा और राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों का DA उनके मूल वेतन के 24.50% से संशोधित कर 27.25% कर दिया गया है। वित्त विभाग के अनुसार इस बढ़ोतरी से राज्य में लगभग 6 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में विफल रहे हैं। उन्होंने हिरियूर शहर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, निवेशक पिछले 2 वर्षों में कर्नाटक नहीं आए हैं, इसलिए नए रोजगार का कोई सृजन नहीं है। जब कर्नाटक में कानून व्यवस्था का संकट है तो निवेशक यहाँ कैसे आ सकते हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव सांप्रदायिक सौहार्द से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सत्ताधारी दल राजनीतिक लाभ के लिए भावनात्मक
और धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आवश्यक वस्तुओं, घरेलू रसोई गैस और ईंधन की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं और लोग सचमुच अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोगों के कल्याण के लिए विकास परियोजनाओं को लागू करने के बजाय भाजपा ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिजाब, हलाल, मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध, मंदिर के मेलों में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिद्धारमैया, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए राज्य में अजान का मुद्दा बनाया है। इसके बाद मुस्लिम पिछले 2 दिनों से मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम पिछले कई सालों में मस्जिदों में लाउडस्पीकर और मंदिरों में हिंदू लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्जिदों और मंदिरों में लाउडस्पीकरों के प्रयोग से क्या समस्या है? हलाल विवाद पर बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार की चुप्पी और मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना, इन मुद्दों से सरकार फायदा उठाना चाहती है, कहा पूर्व मंत्री यूटी खादर ने। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य में इस तरह के मुद्दे पैदा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के बजाय सरकार राजनीतिक लाभ के लिए खामोश है। खादर ने कहा, इसके अलावा यह कीमतों में वृद्धि से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। सरकार मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध पर उन्होंने कहा कि वह इस बात का अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन का स्वागत करेंगे। क्या वॉल्यूम कम करना है या मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहाँ मोदी ने कहा कि बीजेपी एक श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है।
पीएम ने वो 3 बातें भी बताई जिनकी वजह से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस और ज्यादा खास हो गया। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। देश में अभी 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति की, दूसरी है देशभक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा बनाया। लोगों को समझ आ गया है कि परिवारवादी सरकारें लोकतंत्र की दुश्मन हैं और संविधान को कुछ नहीं समझती। दशकों तक कुछ दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, कुछ लोगों को ही वादा करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार सब वोट बैंक की राजनीति के साइड इफेक्ट। बीजेपी ने इस राजनीति को टक्कर दी है, देशवासियों को इसके नुकसान बताने में सफल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले अनिल देशमुख ने इससे बचने के लिए विशेष अदालत की अनुमति को बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई होनी बाकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने अनिल देशमुख को मुंबई के आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया है, जिन्हें स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 31 मार्च को सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन को अनुमति दी थी और एजेंसी को अनिल देशमुख के अलावा 3 अन्य संजीव पलांदे, कुंदन शिंदे और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को हिरासत में लेने की भी अनुमति दी थी। मीट शॉप बैन पर बोली एमपी महुआ मोइत्रा, संविधान तुझे मांस खाने की अनुमति देता है। नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मांस की दुकानों पर लगाई गई रोक का तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने विरोध किया। उनका कहना है कि जब संविधान उन्हें मीट खाने की इजाजत देता है तो प्रशासन रोकने वाला कौन होता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं दक्षिण दिल्ली में रहती हूँ, संविधान मुझे इसकी अनुमति देता है कि जब मुझे पसंद हो मैं मीट खा सकती हूँ। दुकानदारों को भी अपना व्यापार चलाने की आजादी है। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है और कहा है कि इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। यूपी में योगी 2 सरकार बनने के बाद कैराना में पुलिस प्रशासन दबंग भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों व अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा रहा है। एक दिन पहले भूरा रोड स्थित कृषि मंडी उत्पादन समिति के सामने समाजवादी के विधायक चौधरी नाहिद हसन के सगे चाचा सरवर हसन के कब्जे से करीब 10 बीघा सरकारी भूमि को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा दिया था। इसके साथ ही बुधवार को भी प्रशासन द्वारा विधायक के चाचा भूमाफिया सरवर हसन द्वारा रामडा रोड पर मौजूद शत्रु संपत्ति पर बेचे गए प्लॉटों पर खड़े 3 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त करा दिया। इस दौरान एसडीएम संदीप कुमार, सीओ विजेंद्र सिंह भड़ाना, कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवान, अधिशासी अधिकारी मणि अरोरा व राजस्व विभाग की टीम के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस के जवान मौजूद रहे। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। बेनावा है जी। कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए। तो क्या जब नहीं पता लगा आपको? नहीं सर, हमें एक बात तो बताया आप, हम कोई सामान लेने गए, मोटरसाइकिल लेने गए, कागज बन गए, हमने ला के रख लिए। अब बेनावा इसी तरह हुआ, जिंदगी में पहली बार एक प्लॉट लिया। गरीब आदमी ये नहीं पता किस तरह इकट्ठा करके लेता है। पहली बात 300 रुपये की तो मजदूरी है हमारी, तसले की मजदूरी करें हम, इतने बड़ा तो हमारा बिजनेस नहीं है कि हम लोगों की जेब काटते फिरे हैं। अब इसमें बेनावा करवाए, अपने ला के रख लिया। अब हमें क्या मालूम है क्या जवाब है। क्या चाहते हैं आप? क्या है? हम तो ये चाहे हमें पैसे तो मिल जा, हमें तो हमारा मटेरियल गया वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जमीन का तो पैसा मिले। लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए, मुकदमा कराओ करवाना चाहिए जिन्होंने ये किया हमारे साथ धोखाधड़ी की है। अरे नहीं 2 महीने का शामली पुलिस की बड़ी सफलता, AK-47 व करीब 1300 कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। कुख्यात बदमाश विकी त्यागी हत्याकांड में शामिल था। पकड़ा गया बदमाश अनिल उर्फ पिंटू, धर्मेंद्र किरठल व संजीव जीवा जैसे अपराधियों के गैंग में शामिल रह चुका है। पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश विकी त्यागी हत्या में पकड़ा गया बदमाश अनिल उर्फ पिंटू शामिल था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। हम लोग जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं और इसमें कुछ अपराधियों को हम रिमांड भी लेंगे जो कि वर्तमान में जेल में है, और जो ये अपराधी जा रहा है जेल उसको भी हम रिमांड लेंगे ताकि इस मामले की सारी परतें जो हम खोल सकें। रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है।
हमले में यूक्रेन में जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों का रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को सूत्रों ने जानकारी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, G7 और यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ और नए प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रूस के खिलाफ ये देश मिलकर सभी नए निवेशों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। साथ ही इनके वित्तीय संस्थान, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और रूसी सरकार के अधिकारियों पर भी नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। देखते हैं समाचार फिल्मों के। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर का टूटा 3 साल पुराना रिश्ता। आइए देखते हैं खेल जगत के समाचार। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। आंकड़ों में केकेआर से बहुत आगे है मुंबई। पलटन के पास है हार के क्रम को तोड़ने का बड़ा मौका। देखते हैं समाचार बाजार के। महंगाई की मार और अब दूध होगा और महंगा, अमूल के एमडी ने बताई। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र शाहगंज में ट्रैफिक जैम। बीएसपी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन। शहर के रंग मंदिर में देवर दासी मैया की जयंती मनाई गई। अजान विवाद के बीच बेंगलुरु पुलिस ने पूजा स्थलों से माइक जब्त करना शुरू किया। कुमारस्वामी ने बीजेपी के सत्ता में बने रहने पर श्रीलंका जैसी स्थिति की चेतावनी दी। परिवारवादी पार्टियों ने देश संग विश्वासघात किया, पीएम मोदी का तंज। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।